But today, through a conspiracy, the fault lines of our society are being exposed. Mistrust is being created against each other in the society through fallacies, lies, and deceit. Sir, efforts are being made to create such a situation that even a spark will lead to a lot of conflict. Similarly, the attacks on the armed forces are also being intensified on some pretext or the other, or one pretext or the other. Efforts are being made to divide the army and the soldiers. The strength of the army is its discipline and unity. As a part of a conspiracy, sir, this strength of the army is being challenged. Whatever is happening today regarding Agniveer is a part of this conspiracy. I'm afraid to say this. Apart from the society, parliament, army are all under attack, and even the economy is being attacked. When the people of India have really struggled to come out of COVID and are building a society on their effort, we as people representing them in this house at least should recognize the hard work of our people and not undermine India as a country which is growing at this rate. So entrepreneurship itself is being made a villain, sir, which is a shame. Hard-working entrepreneurs are building this country. The conspiracy is to end India's entrepreneurship culture even if before it fully blooms, and thereby hitting at the Indian core backbone, which is the entrepreneurship, small and medium units, and enterprise is what is building India. Negativity is being spread in society towards all those who do business. And this hatred for business and wealth creators is spilling everywhere. There is a conspiracy to send a message to the entire world that India is not safe for investors, sir, and this is not good. Rumors are being spread that Indian institutions cannot guarantee security to foreign investments, which is really a sad situation, sir. Strategic instability, economic instability, and political instability. Some forces are working to create this kind of an image of India, and we should all fight together that this kind of instability building people should be told a lesson. There is a huge nexus. There is a huge nexus behind this, which is carrying out this conspiracy from the streets and even to the parliament. No debates without protests, which are aggressive protests, are happening. You don't even hear answers which are being given. And I'm sorry to remind this honorable house that when the honorable Prime Minister stood up to speak, utmost disruption happened, and people did not want to listen to him. They were screaming, but parliamentary institutional maryada ke upar unse first lecture aata hai. Jab all over the well, they had people standing, and people were forced or nudged or cajoled to say, go into the well, protest. Sir, institutional respect, we have to keep it. Every countryman has come together to fight this conspiracy. We have to be alert, sir. And I take this opportunity to say this. Sir, the last matter, sir. Sir, the last matter. The last matter, sir. Halwa. Okay? We should talk about it. Sir, it pains me, sir. It pains me, actually. If only we know the background with which halwa ceremonies are conducted before the budget is prepared. If only we know the background. Sir? If only we know the background of why halwa ceremonies happen, sir. It's a very important phase where actually in this country halwa ceremonies
have been happening for a very long time. माननीय When मंत्री जी, कब से हो रही है ये भी बता दो आप। मैं बोल रहे हैं सर, मिंटो रोड में जब प्रिंटिंग प्रेस था, जब बजट उधर प्रिंट होता था, तब से लेकर के स्टाफ who get themselves inside that premises, बजट प्रेजेंट होने के बाद तक जब बाहर नहीं आते थे, आज भी वो सिस्टम बरकरार है। वो लोग अपने आप, क्योंकि अंदर जाने के बाद till they can't come out till the budget is read, on their own used to organize हलवा मेकिंग, क्योंकि भारत में एक ट्रेडिशन है, कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले नींबू मीठा। At that time, sir, इटली में नहीं होगा। ओके, आई करेक्ट, भारत में हो रहा, कहीं और नहीं। सर, नवरात्रि मीनिंग 9 nights and 8 days, पुराने ज़माने में they used to stay inside only, no phone, no contact, no landline. If anything, one officer who was given the power to come in and go out, he would convey the message. कुछ नहीं, और बाहर वर्ल्ड से संपर्क। बोल रही है, प्लीज। अभी सर 5 nights and 4 days nowadays they stay in the cellar of North Block, and this is essentially because the confidentiality of budget making has to be respected. So they go in, and before going in, we start this halwa ceremony. And there are media reports, sir, one or two, which I'll read out, which captures it. Halwa ceremony, sir, one media report says, and I quote, "It serves as a recognition for the hard work and dedication of the Finance Ministry officials and staff who have been diligently preparing the budget documents. Dating back to 1980, the halwa ceremony precedes the printing of the budget documents, which take place at the basement of the North Block, a process that must be completed without any official leaving the premises until the budget formally is presented." So this is done more, unquote. Now I again take one line. A sense of solidarity and teamwork among the team members के लिए एक बना करते हैं. It also says it stands as a testament to the tradition and protocols observed in one of the most significant events in the Indian governance calendar. Sir? Yes? In this, sir, the staff themselves make it. The staff themselves make the halwa. Staff themselves make it. Sir, why did it become? Sir, I wish honorable members listen, sir, because they are very scared that something is coming to hit them. When did this become a photo event? When did this become a photo event? Sir, I want to underline this. 2013-14 में मंत्री जी नीचे सेल्लार में जाकर के हलवा बंटवारा करने का शुरुआत 2013-14 में हुआ। मैं पूछ रही हूँ तब, by that time, क्योंकि our leader of the opposition by that time was a full active leader, उससे पहले ऑर्डिनेंस फटा भी गया, वो इंडिपेंडेंस दिखाया विपक्ष के नेता। क्यों उस समय फाइनेंस मिनिस्टर तब की, उनसे ये पूछा नहीं गया कि कितना एससी है भाई, आप नीचे जा रहे हो फोटो के लिए, बोलो नहीं तो वो हलवा में कैंसिल करूंगा, क्योंकि उस समय वो पावरफुल थे ना, रिमोट कंट्रोल था ना। वो हलवा क्यों कैंसिल नहीं किया, उनके हलवा कैंसिल नहीं किया, तब ये पूछा नहीं गया। भारत के हलवा बटाया जा रहा। सर, ये आदत किसी का हो तो वो जमाना गया। मलाई खा करके इस देश को छोड़कर या पार्लियामेंट को छोड़कर लोग गए, लोग वोट करके मलाई खाने वाले को दिखाया रास्ता, चले जाओ, आप सत्ता में बैठना नहीं है, वो जमाना गया। मगर उस समय
उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर से ये पूछा नहीं गया आप नीचे जा रहे हो बंटवारा करने के लिए, हलवा बंटवारे करने के लिए, आपके साथ कितने एससी हैं, कितने एसटी है, कितने ओबीसी है, वो पूछा नहीं है उस समय। उस समय के ऑफिसर्स लोग के स्टैटिस्टिक्स गणना नहीं हुआ, मगर अभी पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ इस देश में लोगों को बंटवारे करने में कुछ षड्यंत्र के साथ इस प्रश्न पूछा जा रहा है। सर, इट्स अ शेम। मैं इस मौके पर मैं रिस्पेक्ट करना चाहती हूं दो लोगों को। सर, आप परमिट नहीं करते हैं नाम लेने के लिए, वो मेंबर भी नहीं है, मगर प्रिंटिंग हमारा फिनेंस मिनिस्ट्री के इंपॉर्टेंट स्टाफ दो लोग, उनको मैं जिक्र करना चाहती हूं। सर, ये सेक्रेट नहीं, प्लीज आप सुन लीजिए, सेक्रेट हलवा के विषय और इसमें इतना इमोशन जुड़ा हुआ है, ये समझ में आएगा। सर, रिटायर्ड ऑफिसर उनके पिताजी गुजर चुके थे जब वो अंदर पहुंच गए और बाहर आने का कुछ नहीं है पॉसिबिलिटी। श्री कुलदीप शर्मा जी डिप्टी मैनेजर थे प्रेस का, उनके पिताजी का देहांत होने का विषय उनको अंदर होने के बाद मिला। फिर भी सर वो कमिटमेंट देखिए, वो जब तक फिनांस का बजट डिक्लेयर हुआ तब तक बाहर नहीं आया। मैं उनके सर झुक करके नमन करती हूँ। ऐसे लोग हैं सर उधर, उनका सेंटिमेंट है हलवा बनाना और बंटवारा करना, उनको नीचे दिखाना अच्छा नहीं है, नीचे दिखाना अच्छा नहीं है। दूसरा मैं बोल रही हूँ, श्री सुभाष अभी भी है प्रिंटिंग प्रेस में, वो भी अंदर जाने के समय उनको मैसेज आया, उनके सुपुत्र का देहांत हुआ सर, मगर वो बोले नहीं, मेरा जिम्मेदारी क्योंकि हलवा के सेरेमनी हो गई, मैं अंदर आ रही हूँ, इससे आई विल नॉट कम आउट। ये है सेंटिमेंट उधर, हलवा बनाना और अंदर जाना, पूरे कर्तव्य निभाना और बाहर आना, इसको नीचे दिखाना सही नहीं है सर। एससी के ऊपर, ओबीसी के ऊपर बहुत सारे विषय हमारे एमपी गण बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रधानमंत्री जी नेहरू जी का लेख सबको पढ़, शायद अनुराग जी ने पढ़ दिखाया। नेहरू जी ने 27 जून 1961 को लिख रहे हैं, I quote sir, I dislike any kind of reservation, more particularly in service. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. Unquote. Sir, that is Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. Okay. Next, sir. खाका खालेकर कमीशन के रिपोर्ट 1955 में जब रिकमेंडेशन आ चुका था, तब से लेकर के कांग्रेस पार्टी के हर गवर्नमेंट उसको दरकिनारे कर दिए। बैकवर्ड कमीशन के कोई कुछ सोच नहीं था। In 1980, Mandal Commission report was submitted to Srimati Indira Gandhi, तब के Prime Minister. Even she didn't touch it. And तब के कांग्रेस के नारा में बोल रही हूँ सर, my Hindi is not very good, but I'll still say it. What was the slogan? ना जात पर, ना पात पर, मोहर लगाएगी हाथ पर। सो जात तब नहीं है, पात नहीं है, मगर अभी बोला जा रहा है जाति। जाति, कितना लोग हलवा में थे, कितना लोग हलवा फोटो में थे, कितने नीचे पे थे। जब तब अगर आपने सही इसको तभी ले आते तो ओबीसी ऑफिसर आज सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचने का मौका था। यू स्टॉप्ड इट सर। नो, इवन वर्स सर, शायद अनुराग जी ने नहीं बताया, मैं एक और कोटेशन पढ़ना चाह रही हूँ सर। Rajiv Gandhi ji, late Prime Minister Rajiv Gandhi ji, gave an interview to Alok Mehta in March 1985, a senior journalist. In that interview, former Prime Minister about OBC reservation says this:
कोट कर रही हूं सर, नो प्रमोशन ऑफ इडियट्स इन द नेम ऑफ रिजर्वेशन, and that promoting idiots in the name of reservation, and that promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country, unquote. रिजर्वेशन के ऊपर ये इतना लेक्चर दे रहे हैं सर। अंबेडकर जी कैबिनेट से निकल करके he said I don't want to be in this because there is no justice for backward communities or for SCs. उनके चिट्ठी ये सब विषय लंबा सा चिट्ठी सर, मगर वो रेलेवेंट पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ। So he said, quote, I will now refer to another, second in brackets, matter that I will now refer to another matter that had made me dissatisfied with the government. It relates to the treatment accorded to the backward classes and scheduled castes. I was very sorry that the Constitution did not embody any safeguards for the backward classes. It was left to be done by the executive government on the basis of recommendations of a commission to be appointed by the President. More than a year has elapsed since we passed the Constitution, but the government has not even thought of appointing the commission, unquote. So Ambedkar ji सरकार से छोड़कर जाने, सरकार किसकी थी सर? First government under Pandit Jawaharlal Nehru, the first prime minister. इनके दादा परदादा के बयान ये सब है सर। आज ये रिजर्वेशन के ऊपर और SC ST के ऊपर बात करते हैं। मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ सर, अभी अखिलेश जी, नेताजी, लोहिया जी इंग्लिश में बोलते हैं सर, अरे लोहिया जी नेताजी खिलाफ तो उस समय इंग्लिश में बोलते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सुनिए चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, मीनिंग आप जो दूसरे को बोल रही हो वो आप पहले कर दिखाओ। मैं पूछ रही हूँ सर, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने SC हैं, कितने ST हैं, कितने OBC हैं? क्योंकि बाहर के वाले लोगों का नाम पढ़ना नहीं है, 9 लोग हैं, कोई SC नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम सर। आप पहले आपके व्यवस्था सही करो, SC को दो, फिर आकर हमसे पूछ लो भाई, ये बोलो सर। फिर दूसरा एक उदाहरण देती हूं सर, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें 5 लोग हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में, नाम नहीं पढ़ रही हूं सर, मगर मुझे एक भी SC नहीं दिखाई। सो सर SC ST लोग के ऊपर हम सब कुछ अच्छे करने के लिए इरादा रख सकते हैं, मगर जनरेशन आफ्टर परदादा दादा सबके बयान एक ही जैसे जब है और काम कुछ नहीं हुआ, आप जाकर के आज बोलेंगे तो कैसे भरोसा आएगा सर? और ऊपर से हलवा जैसे एक इमोशनल सेंटिमेंटल मैटर जिसमें पूरे उस मिनट का फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्टाफ बंद अंदर कमरे में ये रह करके काम करते हैं, उनके मुंह मीठा करने का काम में आप ऐसे प्रश्न चिन्ह के साथ, और मैं जब इस विषय में मैं कैसे जवाब दूं, ऐसे करके सर पे हाथ रखा तो पूरे ट्रोल आर्मी के साथ मुझे पूछा जा रहा है कि SC के ऊपर जब विपक्ष के नेता बात कर रहे हैं आप सर पर हाथ रख रही हो, हंस रही हो। नहीं, ऐसे एक इमोशनल मैटर को इतना हल्के से डील कर रहे, उसको मैं सर न फोड़। सर थैंक यू वेरी मच सर, मैं बजट के लिए कुछ इतना समय दिए आपके लिए मैं धन्यवाद। माननीय सदस्य, अब मैं वर्ष 24-25 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदानों की मांगों की
को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये है कि अनुदान की मांगों की सूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 1 से 36 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु आवश्यक राशियों की पूर्ति के लिए अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा और पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधी राशियां केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों का हुआ। निर्णय हाँ वालों का वर्ष 24-25 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर संबंधी अनुमानों के पारित हुई। आइटम नंबर 30 माननीय वित्त मंत्री जी। आइटम नंबर 30 माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the Union Territory of Jammu Kashmir for the services of the financial year 24-25. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पर अनुमति प्रदान की माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। आइटम नंबर 31। Sir, I introduce the bill, sir. आइटम नंबर 31 माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain... सर आइटम नंबर 30-31 है। आइटम नंबर 31। Sir, I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 24-25 to be taken into consideration. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पर विधेयक को विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत गया। अब सभा पर विधेयक खंडवार विचार करेगी। प्रश्न खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Sir, I rise to move that the bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 32 से किरण रिजिजू जी। With your permission, I move the following. That the Rule 331G of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, in its application to the discussion and voting on demands for grants for 2024-25 be suspended. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के 3316 को निलंबित कर दिया गया है ताकि अनुदानों की मांगों को विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की संदर्भित किए बिना पारित किया जा सके। तथापि अनुदानों की मांगे स्थायी समितियों के गठन के पश्चात उन्हें संदर्भित मानी जाएगी, जिससे समितियां उनकी जांच शुरू कर सके और उन पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सके ताकि समितियों द्वारा की गई सिफारिशों को अगले वर्षों के लिए
अनुदानों की मांगों की तैयारी के उपयोग में किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, बजट पर सामान्य चर्चा में बीएससी पर 20 घंटे आवंटित किए गए थे, लेकिन इस विषय पर 27 घंटे से अधिक चर्चा। तो ये आप देख रहे थे सीधा प्रसारण लोकसभा से, जहां पर आपने बजट पर चर्चा पर वित्त मंत्री का जवाब भी देखा। वित्त मंत्री ने कहा, उन्होंने चर्चा में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बजट में किसी भी क्षेत्र में कम पैसा नहीं दिया गया है और किसी भी राज्य की अनदेखी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि बजट को लेकर भ्रामक प्रचार जो है वो किया जा रहा है और कुछ लोग उद्यमशीलता को विलेन बना रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।